Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तोत्र Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर को Glory महिमा to देते God. हैं। Glory to ओ God. हाँ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, Glory to God. आपको महिमा Glory देते to हैं। God. Yes, Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. स्तोत्र Glory to स्तोत्र God. Glory to स्तोत्र God. हालेलुया। Hallelujah. Worship Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Praise the Lord. प्रभु Praise की the Lord. स्तुति हो, प्रभु की Praise स्तुति, ye the Lord. प्रभु की Hallelujah. स्तुति हो, प्रभु Hallelujah. की स्तुति हो। हालेलुया। Hallelujah. स्तोत्र स्तोत्र Hallelujah. स्तोत्र। Glory to God. Glory to God. Glory to Thank God. you, Jesus. We worship you, Lord. Yes. We praise you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank Glory you, to God. God. Thank you, God. Glory to God. Glory to Glory, God. glory, glory to Greetings Jesus. to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से आप सबों का हम अभिवादन करते हैं। I firmly believe that you all are found safe and sound under the mighty wings of God the Father. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जो है वो खुदावन के पंखों तले सुरक्षित हैं। I also believe that your loved ones, they all are saved by the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह से आपके प्रिय सुरक्षित हैं। Know that God loves you. निश्चय जान रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। His love is unchanging love. उसका प्रेम कभी ना बदलने वाला His प्रेम love है। is called the agape love. उसका प्रेम जिसे हम अगापे प्रेम कहते हैं, And He is the good God. और वो भला परमेश्वर I है। always love to say this. मुझे ये कहना बहुत पसंद है हमेशा God is good कि परमेश्वर यहोवा भला है all the time. हर एक समय, And all the और time, हर समय our God is the good हमारा God. परमेश्वर भला We परमेश्वर है। welcome you, dear people of God, for this service. आज इस ऑनलाइन सर्विस में हम आप सबों का स्वागत करते And हैं। I believe that today, once again, God the Father, He is going to talk with और you. निश्चय विश्वास करते हैं कि खुदा बाप आज एक बार फिर से आपसे बातें I करेंगे firmly believe that you will be touched by the power of the Holy और आप Spirit. पवित्र आत्मा की सामत के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे, ये मेरा विश्वास I है। believe that none of us will go empty-handed from this place today. और कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना लौटेगा, Because God is the living God. क्योंकि परमेश्वर जीवित खुदा है। And wherever He comes, और जहाँ कहीं उसकी हजूरी, उसकी उपस्थिति आती He है, does supernatural things. निश्चय वहाँ अलौकिक काम होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So be with us, stay tuned with us with expected heart. तो हमारे साथ कुछ समय के लिए बने रहिए, आने वाले समय के लिए अपेक्षित हृदय के साथ। Yes, expect great things from God. खुदावन से बड़ी बातों की अपेक्षा रखें। We cannot do more supernatural things in your life. आप ये जान रखिए कि हम आपके लिए कुछ अलौकिक नहीं कर सकते, God can do it. केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। Only God the Father through His Son Jesus Christ do it. परमेश्वर पिता अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में अद्भुत काम करते We हैं। are just a vessel whom God uses for His glory. परमेश्वर के लोग तो एक पात्र के समान है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। We just encourage you, we can come and we can preach before you the word of God. हमारा काम है कि हम आपको उत्साहित करें प्रभु में और परमेश्वर के वचन से आपको सिखाएं। But the supernatural things, लेकिन जो अलौकिक बात है, healings, जो चंगाई है, जो deliverance, छुटकारा है, to save जो people, उद्धार है, only God can वो do. यीशु ही देता So है। that's why we must have the expectation heart. तो आपका हृदय अपेक्षा से भरा हो Expect things from God. और परमेश्वर से अपेक्षाएं लगाएं। And every individual who expects things from और God हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर से अपेक्षा रखता है, receives from God. वो निश्चय प्रभु से पाता भी है, Because you're expecting things from unlimited क्योंकि God. आप उससे अपेक्षा रख रहे हैं जो असीमित परमेश्वर है। Sometimes we as a human being, we expect things from a man who is limited. कई बार हम मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्यों से अपेक्षा लगा लेते हैं, पर वो दूसरा मनुष्य तो एक सीमा में बंधा है। Yes, we human beings, we are limited. हम सब सीमित है कहीं ना कहीं, But God is unlimited. लेकिन परमेश्वर ही है जो असीमित है। He is the unlimited वो God.
असीमित परमेश्वर है, In उसकी all- कोई सीमा नहीं। In all men, our God the Father, He is the unlimited God. आपका और मेरा खुदावन परमेश्वर पिता असीमित He है blesses limitlessly. और उसकी आशीष असीमित है। When He blesses, जब वो आशीषों को देता it है, is tremendous to see. वो अद्भुत होती है, It is marvelous to see. वो आश्चर्यजनक होती है। It is amazing to see when God moves. जब परमेश्वर का चलन होता है, ये अद्भुत काम होता है। That's why we as a children of तो God, आप और मैं जो परमेश्वर की संतान है, we should expect great things from God the Father. आपको और मुझे उस परमेश्वर से महान बातों की आशा रखनी है। And we should reach before Him in the name of Jesus और जब हम Christ. प्रभु यीशु के नाम से उसके सम्मुख आते हैं, The most precious, powerful name, वो नाम जो सबसे अनमोल और सबसे सामर्थी है, sweet name, वो सबसे मीठा नाम the है, name of Jesus Christ. यीशु मसीह का नाम। When we approach to God in जब the हम- name of Jesus जब हम Christ, परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु के नाम से आते हैं, because the Bible says, बाइबल बताती है, Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, whatever you will ask in my name, that what I will do. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। This is what Jesus said, ये यीशु मसीह ने कहा है that you need to ask God in my name. कि तुम्हें परमेश्वर से दुआ करनी है मेरे नाम You से। know, we should approach God, we should come near God in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम से आप और मैं प्रार्थना करते हैं, And that's why God hears. और परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाएं पसंद है और वो उन्हें सुनता है, And God sees us in Jesus. क्योंकि परमेश्वर पिता आपको और मुझे, हम प्रत्येक को प्रभु यीशु में ही देखते हैं। God the Father, when He sees us, जब परमेश्वर पिता आपको देखते He हैं, sees us through Jesus. वो यीशु में होकर यीशु को हम में देखते हैं। And that's why we pray in the name of Jesus और Christ. इसलिए वचन कहता है प्रभु यीशु के नाम से दुआ करो। And that's why we approach before God in the name of Jesus इसलिए हम Christ. परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु के नाम से आते हैं And then God hears. और परमेश्वर पिता हमारी सुनते हैं। Expected hearts are required. अपेक्षा से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ हृदय आज आवश्यक है। Not doubtful heart. ऐसा हृदय नहीं जिसमें संदेह हो, Expected heart. लेकिन आशा, अपेक्षा हो। Every individual who comes before Jesus, जो कोई यीशु के पास आया, when you read the Bible, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, came with expected heart. उनकी अंदर एक अपेक्षा, एक आशा थी। And when they came before Jesus with such expected और heart, जब वो यीशु मसीह के पास अपेक्षा के साथ आए, Jesus moved with हम compassion. जानते हैं यीशु मसीह हर एक के लिए तरस से भर He गए। moved with वो compassion. बिल्कुल तरस से भर गए लोगों के लिए, And He performed a supernatural miracle for them. और हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत सामर्थ्य के काम किए। And the Bible says, और बाइबल बताती है He is the same yesterday, Amen. today, and कि forever. वही खुदावन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, उसके लिए बाइबल कहती है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। Yes, He is the same yesterday, today, and मेरा forever. यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। He is the same God. वो कभी ना बदलेगा। He is the same Savior. वो हमेशा वही उद्धार करता है। He is the same provider and वो deliverer. आज भी वही उपाय करने वाला, छुटकारा देने वाला We है। should reach to God through Jesus और आइए प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर पिता तक पहुंचे, with expected heart. आशा के साथ, अपेक्षा के साथ। And God will perform. निश्चय परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम He करेंगे। will move with वो compassion. निश्चय तरस से भर जाएंगे You will be delivered. और आप छुटकारा पाएंगे। Today is the day of deliverance. आज आपके लिए वो छुटकारे का दिन होगा, God is going to do it. क्योंकि परमेश्वर ऐसा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise आमेन। the प्रभु की Lord. स्तुति हो। Arabasekariandaralaba. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Oh, Jesus. glory to God. What a mighty presence of God here I'm experiencing. ओ प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। I'm seeing that midst of all the hurdles and difficulties when we are preaching the word of God. मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ जब सारे संघर्षों के मध्य में भी हम इस बात का चुनाव करते हैं कि हाँ प्रभु, हम आपके वचन का प्रचार करेंगे। Yes, God sees it. परमेश्वर उसे देखता है, God is moving here. क्योंकि परमेश्वर का चलन यहाँ, God is moving here. परमेश्वर का चलन Oh, यहाँ। what a mighty move of God is here. Hallelujah. Hallelujah। The Lord is telling me पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं to take few minutes कि मैं कुछ क्षणों को लूं and just thank God for everything. और आइए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद दें। Every individual
individual, just open your mouth and just thank the Lord. आइए सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। Just thank the Lord, for He is good. ओ धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर भला है। Yes, and numbers of tremendous things that God has done in our lives. ओ परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को आज तक किया है। Let us take few minutes and just thank the Lord. आइए कुछ समय लेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। Yes, just thank the Lord. ओ धन्यवाद दीजिए, Hallelujah. धन्यवाद दीजिए। Hallelujah. Thank you Jesus, thank you धन्यवाद प्रभु Jesus, यीशु। thank you Jesus। We adore you, worship you, praise you Lord। ओ प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते Because you हैं, alone is worthy of all the glory, honor and praise forever and ever। क्योंकि आप ही आदर और महिमा और जलाल के योग्य हैं हमेशा सर्वदा के लिए। Lord, you're so good to us। प्रभु, आप हमारे लिए कितने भले परमेश्वर You have हैं। been so faithful with each one of us प्रभु, all the time। आप हर समय हम में से प्रत्येक के साथ कितने वफादार, विश्वास योग्य रहते हैं। Oh, your love is unconditional for us। प्रभु, आपका प्रेम तो हमारे लिए बिना किसी शर्त का प्रेम है। Oh, your love is unfailing, Lord। प्रभु, आपका प्रेम तो कभी भी असफल नहीं होता। Lord, your mercy endureth forever in our lives। आपकी दया नित्य हमारे जीवन में बनी रहती है, Because you're so gracious। क्योंकि आप कितने अनुग्रहकारी You're परमेश्वर so हैं। merciful, Lord। आप दया से भरे हुए परमेश्वर Yes, हैं। you are love, my Jesus। आप तो प्रेम है प्रभु यीशु। Lord, right now, इस घड़ी as your spirit is moving, जैसे आपकी आत्मा का यहाँ पे चलन है, Lord, I pray for your people। मैं प्रार्थना करती आपके लोगों के लिए। Lord, fill their hearts with your love। प्रभु, होने दीजिए आपके प्रेम से इन लोगों का हृदय भर जाए। Lord, there are few those who are broken hearted। कई ऐसे हैं जो कुछ लोग जिनका हृदय टूटा हुआ They're है, in sorrow and pain। वो तो दुख और दर्द में हैं, They're going through sleepless nights। वो तो अनिद्रा से ऐसे समय से गुजरते हैं जब वो रात को सो भी नहीं पाते। Lord, right now, प्रभु, इसी घड़ी oh, embrace them with your love। प्रभु, इनको अपने गले से लगा लीजिए। Lord, let your love come upon them। आपका प्रेम इनके हृदय में अभी इसी समय पहुंचे। Surround them। प्रभु, इनको आप घेर लीजिए। Yes, Jesus। हाँ प्रभु यीशु। Yes, Jesus, right now, touch my dear sister। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इसी घड़ी मेरी बहन को छू लीजिए। Lord is telling you, my dear sister। मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर आपसे यूं कहते हैं, Oh, your days of mourning are going to be over। तेरे शोक के दिन अब बहुत हुए, बीत चुके। Oh, the season is coming for you to have joy। अब एक ऐसा समय आ रहा है जहां पे तू आनंद बनाएगी। You are going to turn your sorrows into joy। खुदावंद आपके शोक को आनंद में बदल रहे हैं। Get ready, my dear मेरी प्रिय sister। बहन, आप तैयार हो Your जाइए। tears of sorrows will turn into tears of joy। आपके शोक के आंसू अब आनंद के आंसू में तब्दील होने जा Because रहे right हैं, now Jesus is healing your heart। क्योंकि इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को चंगा कर रहे हैं। Yes, you have gone through a broken marriage, a very, very difficult relationship। आप अपने विवाह में बहुत ही कठिन समय से टूटे हुए रिश्तों को आपने देखा है, But sister, God is healing you। परंतु परमेश्वर आपको चंगा कर रहे I हैं। want to tell you that your coming days, your later days, it's going to be better than your later days। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके आने वाले जो दिन हैं, आपके बीते दिनों से कहीं ज्यादा उम्दा और आशीषित होने वाले हैं। Oh, believe it and receive it in the name of Jesus। विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे ग्रहण करिए। Lord, fill your people। प्रभु, अपने लोगों को भर दीजिए। Fill your people, Lord, प्रभु, अपने लोगों को भर with दीजिए, your joy, अपने आनंद से भर with दीजिए, your love। आपके प्रेम से ये भर जाएं। Yes, Jesus। हाँ प्रभु यीशु। Lord, we bless them, Lord। प्रभु, हम आप में आनंद मनाते हैं, इनको आशीष देते हैं। Lord, as we are ready for the word of God, प्रभु, जैसे कि हम वचन के लिए तैयार होते हैं, अब आगे talk to each one of us, Holy Spirit। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक से बोलिए, बातचीत Yes, करिए। Lord, talk to me and talk through me। हाँ प्रभु, मेरे द्वारा और मुझसे भी बात करिएगा। Lord, we surrender all to you प्रभु, हम आपको ही सारी बातों को समर्पित because करते we are हैं, nothing without you, Jesus, and can't do anything without क्योंकि you। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बिना कुछ नहीं है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Holy Spirit, help us। पवित्र आत्मा हमारी मदद In करेगा। Jesus' mighty name we pray। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah। हालेलुया। Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। So hope you all are excited in the presence of God to hear from the Lord। तो हम आशा करते हैं कि आप सब
परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हैं उसके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए। See, I'm meditating on, on few scriptures from the book of Hebrews, which has really touched my heart. और मैं इब्रानियों की पत्री से कुछ वचनों को मैं मनन कर रही थी और इन वचनों ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। And the Holy Spirit started talking to me and revealing His mysteries to me. और पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगे और अपने प्रकाशनों को, अपने भेद की बातों को वो मुझको बताने And I लगे। believe that as the Holy Spirit is here and He's teaching each one of us, we all are going to be blessed. और मैं आशा करती हूं कि जैसे पवित्र आत्मा यहाँ पे है और वो हमको सिखा रहे हैं, हम सब आशीष पाने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the title of today's sermon is Take the Mercy and Accept the Help. तो आज का जो संदेश का शीर्षक है वो है उस दया को आप ग्रहण करिए, उसकी मदद को स्वीकार करिए। Take the mercy उसकी दया को आप ग्रहण करिए and accept the help. और उसकी मदद को आप स्वीकार करिए। See, God's mercy is always available for each one of us. याद रखिए, परमेश्वर पिता की दया हमें से प्रत्येक के लिए उपलब्ध है। As we were praying just right now, the Holy Spirit told us that Jesus is so merciful. और जैसे कि हम अब पढ़ रहे थे और हमने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह कितने दयालु प्रभु यीशु हैं। Just now as we were praying, हम प्रार्थना भी अभी कर रहे थे and Holy Spirit told us that Jesus is so merciful, He's love. और कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इतने दयालु हैं, वो प्रेम से भरे हुए प्रभु हैं। And that's what here the Word of God tells us. और यही तो कलाम हमें इस बात को बताता है। And I want to take you to the book of Hebrews chapter 4. और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ में खोलिए इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 4 And let us read verses 14 and 15. और उसके वचन 14 और 15 को हम पढ़ें। And let's see what the Bible says here. और आइए देखिए यहाँ पे कलाम में क्या लिखा है। It's wonderful scripture. बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ It's है। Hebrews 4, chapter 4, verses 14 and 15. इब्रानियों 4 और उसके वचन 14 और 15 को हम पढ़ रहे Let me हैं। read this with you. आइए इसको हम एक साथ मिलकर पढ़ें। Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे Verse रहें। 15 says, और वचन फिर 15 में लिखा हुआ For है, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. वचन 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। First thing that I want to tell you this morning, आज की सुबह जो पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, that rejoice that we have a high priest. आनंदित हो जाइए, आनंद मनाइए, क्योंकि हमारा एक महायाजक है। Yes, we have a high priest हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है who is able to understand all our weaknesses. जो हमारी तमाम प्रकार की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को समझता है। He understands us very well. वो भली रीति से उसे समझता है। He understands your ups and your downs and your struggles and your challenges. आपके चुनौतियों को, संघर्षों को, उतार चढ़ाव को हमारा ये बड़ा महायाजक प्रभु यीशु मसीह समझता है। Yes, and He's alive and He's alive forevermore. और वह जीवित है, और वह जीवित है और सदा काल के लिए जीवित See, है। if you know the Old यदि Testament, आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, we know that in the temple, हम इस बात को जान पाते हैं कि मंदिर में there they used to have high priests. वहां पे एक महायाजक हुआ करता था। The high priest, their work was to do the sacrifice for the sins of the people और of God, और or वहां पे Israelites. कलाम में लिखा हुआ है कि वो महायाजक लोगों के पापों के लिए वहां पे बलिदान किया करता। That was his high priest's job. ये उस महायाजक का कार्य था। And those high priests, they were having an expiry date because they were dying one after another. उन दिनों में उन महायाजक लोग जो थे, जो ये काम किया करते थे, वो मनुष्य थे। उनका एक समय निर्धारित था जिस समय में वो इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते थे।
परंतु now in the new covenant, अब नई वाचा में, in the New Testament, नए नियम में we have a high priest who's never going to die. हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है जो अब कभी भी नहीं मरने का, Because he has already defeated death and sin forever. क्योंकि इस महायाजक ने, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने मृत्यु को और नरक को, अंधकार की ताकतों को नाश कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ यीशु मसीह is our high priest now. हमारा अब ये बड़ा महायाजक जो यीशु मसीह है, He is our high priest right now. अब ये हमारा बड़ा महायाजक है, And he is our high priest forever. अब ये हमेशा के लिए हमारा बड़ा महायाजक रहेगा। See, in the Old Testament, पुराने नियम में once in the year, वर्ष में एक बार the appointed high priest, they used to offer a sacrifice for the sin of Israelites. इज़राइल के लोगों के लिए एक महायाजक को ठहराया जाता था, जो उनके लिए वर्ष में एक बार बलि करता था उनके पापों की क्षमा के He लिए। used to shed the blood. वो वहां पे लहू बहाया करता, And he used to offer that sacrifice against the sin of the people. और इस लहू को बहाने का कारण क्या होता? वो इस लहू को लोगों के पापों की पश्चाताप के लिए बहाता, Even for himself. अपने स्वयं के लिए भी, Because he was just a man. क्योंकि वो महायाजक भी मनुष्य ही तो था। Those high priests in the Old Testament were just a man. उन दिनों में महायाजक वो मनुष्य ही थे, And they you have to sacrifice for their sins as well. और उनको अपने पापों के लिए भी इस बलि को चढ़ाना पड़ता। But now in the new covenant, परंतु अब नए नियम in में, the better covenant, अब इस सर्वोत्तम वाचा में, here यहाँ पे the only son, the begotten Son of God, परमेश्वर का एक लौता बेटा, he came down वो स्वयं उतर आया from heaven to earth स्वर्ग से पृथ्वी पर, so that he can offer himself for our sins, for the sin of mankind. ताकि वो मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। The word of God is saying he was tempted in all the ways. कलाम में लिखा हुआ है कि वो हर प्रकार से वो परखा गया, In all the ways. हर प्रकार से वो परखा गया। But Bible is saying in verse 15, Hebrew 4:15, परंतु यहाँ पे कलाम में हमने पढ़ा इब्रानियों 4 उसके वचन 15 में, but he was yet without sin. तो भी वो निष्पाप निकला। Hallelujah. हालेलुया। There was no sin in Jesus. यीशु में कोई पाप नहीं है, He is sinless. वो पाप रहित He है, is the holy of holies. वो महान और पवित्र है। Hallelujah. हालेलुया। And he offered himself as a sacrifice and shed not the blood of any animal but of his own blood for your and my redemption. आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बैलों और बकरों का लहू नहीं, परंतु स्वयं का लहू उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में बहा दिया। Amen. Amen. And that's why और इसीलिए this high priest, ये बड़ा महायाजक, whose name is Jesus Christ, जिसका नाम प्रभु यीशु है, hallelujah, Hallelujah. he is always available for you and me to give us the mercy and help. और ये बड़ा महायाजक जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, ये आपके और मेरे लिए हर समय उपलब्ध है ताकि वो हम पर दया करे। Let's read verse 16, Hebrew verse 16, what it says. आइए इब्रानियों 4 और उसके वचन 16 को हम पढ़ते हैं। It says, let us therefore, इसलिए, let us therefore, Bible is saying, come. It's an invitation. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. इसलिए यहाँ पे एक आमंत्रण है जो आप पढ़ सकते हैं, वचन 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Bible is saying because you have a high priest now. बाइबल बताती है क्योंकि अब तुम्हारे पास में एक बड़ा महायाजक उपलब्ध A है, high priest who was tempted in all the areas but yet without sin. एक ऐसा महायाजक जो सारी बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला, Who sacrificed his own blood for your redemption. जिसने आपके और मेरे
प्रायश्चित के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया once for all. एक बार सदा के लिए। See, in the prayer days in the Old Testament, they used to sacrifice yearly पुराने नियम में प्रति वर्ष वो इस बलिदान को किया करते, because it was required. क्योंकि वो उस समय की जरूरत थी, Because they were sacrificing the blood of the animals. क्योंकि वहां पे वो जानवरों का, बैलों का, बकरों का लहू वो बहाया करते, And every year they have to do it. और प्रतिदिन पापों की क्षमा के लिए, प्रति वर्ष पापों की क्षमा के लिए उनको ऐसा करना पड़ता। But here in the new covenant, परंतु अब इस नई वाचा में once for all, एक बार सदा के the लिए most precious blood, बहुमूल्य, बेशकीमती, निर्दोष लहू, the most holy blood, पवित्र लहू, the most holy blood सबसे ज्यादा पवित्र लहू was shed for your and my redemption. जो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए बहा दिया गया। And Jesus said, और यीशु ने कहा now it is finished. अब ये पूरा हुआ, Now it is finished. अब ये पूरा हुआ। Now there's no need for you and me to go to the Lord and do any kind of sacrifices so that He can forgive us from our sins. अब आपको और मुझको जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के समक्ष जाके हम अपने पापों की क्षमा के लिए बार बार लहू को बहाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए अपने लहू को बहाकर हमें क्षमा कर दिया Because है। Jesus' blood is more than powerful to forgive the sins of entire humanity. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो निर्दोष, निष्कलंक, सर्वोत्तम, पवित्र लहू मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए पर्याप्त है। The yearly sacrifice has ended. अब वर्ष दर वर्ष किसी प्रकार का बलिदान करने की आवश्यकता There's नहीं no है। need for any one of us to shed any blood for the forgiveness of our किसी sins now. प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष को पापों की क्षमा के लिए बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, Because Jesus paid it all for us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए कीमत चुका दिया And है He became our high priest. और वो हमारा महायाजक ठहरा दिया High गया। priest, the word of God says, according to the order of Melchizedek. मलकीसेदक की रीति के अनुसार यीशु हमारा बड़ा महायाजक है। Before I go ahead, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, I want to tell you once again that it's very important to understand that because of Jesus, now we have the boldness to go straight to God. और इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वजह से अब हमें हियाव होता है कि हम परमेश्वर के समक्ष बिल्कुल पहुंच सकते हैं, Because now क्योंकि अब Jesus has opened the door for us. यीशु ने हमारे लिए उस द्वार को खोल दिया है। Actually, Jesus is the door, Bible says. वास्तविकता तो ये है कि यीशु ही वो द्वार है। Amen. Amen. And without Jesus, nobody can approach to the Holy of Holies where throne of God and God exists. और प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी उस महापवित्र स्थान में जहां पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है नहीं पहुंच सकता। It's only through Jesus. सिर्फ यीशु के द्वारा ही वहां पे हमारी पहुंच होती It's है। only through our high priest. हमारे महायाजक के द्वारा ही वहां तक हमारी पहुंच होती है, Because even in the Old Testament, क्योंकि पुराने नियम में भी see, it was the law that without the shedding of the blood, the high priest cannot enter to the Holy of Holies. और वहां पे लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए कोई भी महायाजक उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। It was not allowed for anyone to do that. किसी के लिए यह अनुमति ही नहीं थी ऐसा करने की। And only once in the year they used to enter there with the sacrifices in their hands. साल में एक बार ही वो अपने हाथों में उस बलिदान को लेकर वहां पे अंदर जाया करते। But when Jesus shed his blood, परंतु जब यीशु ने अपने लहू को बहाया and Jesus entered not into the tabernacle, not into the Holy of Holies created by the hands of man, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए तंबू के भीतर से उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किए, but he entered into heaven. परंतु वो स्वर्ग में भी प्रवेश He किए, entered directly into the heaven. क्योंकि वो उस स्वर्ग में भी प्रवेश किए। No, he entered in the heaven. वो स्वर्ग के अंदर भी प्रवेश किए, And when he entered and opened the door for us, और जब वहां प्रवेश करके उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया and he offered his blood और वहां उन्होंने अपने जब लहू को बहाया as a sacrifice for the forgiveness of our sins, हमारे पापों की क्षमा
के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां उस लहू को उंडेल दिया once for all. एक बार हमेशा के लिए। Oh, hallelujah. The Holy of Holies, the throne of God, the throne room of God. Now its door is open for each one of वो us. महापवित्र स्थान जहां पे पवित्र पवित्र परमेश्वर विराजमान है, उस द्वार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा एक बार हमेशा के लिए मानव जाति के लिए खोल दिया। Try and understand. इस बात को समझने का प्रयास करिए। Every time when we pray in the name of Jesus, हर समय जब कभी भी हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते we हैं, enter into that throne room. हम उस सिंहासन में के समक्ष हम प्रवेश We करते हैं। enter boldly in front of the throne of God. हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ में प्रवेश करते हैं, Because now we have our high priest with us, क्योंकि अब हमारे पास में हमारा महायाजक उपलब्ध है, who has already forgiven us from all our sins of past, present and future. जिसने हमारे अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के पापों से हमें छुटकारा दे दिया See, है। it's not like that he has just forgiven the sins of our past. ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ हमारे अतीत के पापों से ही हमें छुड़ाया, And now for our future again, he'll pay some price, shed his blood or pay some price. ऐसा भी नहीं है कि हमारे भविष्य के पापों के लिए दोबारा वो अपने लहू को बहाएगा। No. ऐसा नहीं He है। has shed his blood once for all for the sins of our past, present and future as well. प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमेशा के लिए हमारे अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया है। And now the door is open for us अब वो द्वार हमारे लिए खुला हुआ to है enter into the Holy of Holies. ताकि हम उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर See, पाए। even in the Old पुराने Testament, नियम में भी it was very dangerous to enter into the Holy of Holies without sacrifice, because if any high priest will do that, he will be dead. और वहां पे पुराने नियम में यदि कोई भी महायाजक बिना किसी बलिदान के महापवित्र स्थान में प्रवेश करता तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती थी। It was very dangerous. बहुत ही खतरनाक वो स्थान था। Even if it was dangerous for high priest, just imagine that not even a common people, the other, the people of Israelites, they have never entered the Holy of Holies. जब महायाजक के लिए इतना वो जगह वो बात खतरनाक थी तो सोचिए एक साधारण मनुष्य के लिए ये बात कितनी खतरनाक होगी। But now you and me, परंतु आप और मैं अब वर्तमान में we are so privileged in Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में कितने ही आशीषित लोग हैं। We are the people of the new covenant, हम तो नई वाचा के लोग हैं, better covenant. वो सर्वोत्तम वाचा है That we have our high priest Jesus Christ always with us. कि हमारे पास में हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमेशा उपलब्ध है। And he says, come boldly to receive help from God. और वो कहता है कि परमेश्वर से सहायता पाने के लिए बड़े हियाव के साथ में तुम आ जाओ। Approach to God boldly because Jesus is my high priest. परमेश्वर पिता के पास में तुम अपने मदद के लिए आ जाओ क्योंकि अब यीशु हमारा महायाजक है। I can go near to my God, my Father, the Almighty, with the boldness that all my sins are forgiven in Christ, and now I am the righteousness of बड़े God. हियाव के साथ में हम परमेश्वर के समीप यीशु के नाम से आ सकते हैं, इस बात को जानते हुए कि यीशु मसीह में मेरे तमाम पापों से मैं छुटकारा पाके मैं निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप हो चुका And there's हूं। no condemnation over my life. अब मेरे जीवन में किसी प्रकार का भी दोष भाव नहीं है, The दंड Bible नहीं is है। saying in Hebrews 4:16, if you will get this revelation, I'm telling you, your lifestyle will be changed मैं आपको completely. बताना चाहती हूँ कि यदि आप इस प्रकाशन को पा लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इब्रानियों 4:16 के मुताबिक It says, let us therefore come boldly, approach boldly to the throne of grace. इस लिखा हुआ यहाँ पे बड़े हियाव के साथ में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। In other translation, it says, come with confidence in the presence of God. और दूसरे संस्करण में लिखा हुआ बड़े आत्मविश्वास के साथ में आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। Confidence that we have in Christ. आत्मविश्वास होना चाहिए किस बात पे कि हमारे पास में यीशु मसीह हमारा महायाजक उपलब्ध We है। have all the confidence in our high priest. हमारा पूरा आत्मविश्वास हमारे महायाजक के ऊपर में ही होना It's चाहिए। not me. मैं नहीं, It's not my works. मेरे कार्य नहीं, It's not my goodness and how good I am. मेरी भलाई की मैं कितना भला हूं वो नहीं, But it's because my high priest has paid the price ये for me. इसलिए क्योंकि मेरे महायाजक ने मेरे लिए कीमत चुकाया है। Hallelujah. Hallelujah. That's why I'm bold. और इसीलिए मैं बड़ा ही आनंदित हूं, आशीषित हूं।
And that's why I'm boldly preaching. और इसलिए मैं बड़े हियाव के साथ में प्रचार करता, And that's why I say to Jesus that, Lord, I am here with you. और इसलिए मैं यीशु से कह सकता कि मैं यीशु तेरे साथ यहाँ पे हूँ, And that's why I can enter with my high priest. और मैं बड़े ही हियाव के साथ में अपने महायाजक के पास पहुंच सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is the boldness that we need ये today. है वो हियाव जो हमें चाहिए। This is the boldness we need when we pray in the name of Jesus. ये है वो हियाव जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते And हैं। the word of God says, then what will happen to you? और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि फिर क्या होगा? Then you will receive mercy and help that is required. और फिर लिखा हुआ है कि तुम्हें वो दया और अनुग्रह मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। In the time of need. आवश्यकता के समय में, Whenever you are in need. जब कभी भी तुम किसी प्रकार की आवश्यकता में When you हो, feel weak. जब कभी भी तुम कमजोर महसूस When करो, you feel maybe that you are completely pressed down by the challenges of your life. जब कभी भी ऐसा हो कि संघर्षों चुनौतियों के द्वारा तुम बिल्कुल दबा दिए गए हो, When you feel that the storms are all around you. जब कभी भी ऐसा लगे कि तूफान तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा When है, you feel that sickness is going to kill you. जब ऐसा लगे कि बीमारी मार डालेगी, When you feel that you can never overcome this financial जब problem. ऐसा लगे कि तुम अब इस आर्थिक संकट से कभी बाहर नहीं निकल सकते, What you have to do. परंतु आपको क्या करना है? What you have to do. आपको ऐसे घड़ी में क्या करना है? In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Trusting your high priest and having full confidence in him. अपने महायाजक के ऊपर में भरोसा रखते हुए, उसके ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखते हुए, You have to approach boldly with confidence into the throne of grace. आपको उस अनुग्रह के सिंहासन के तले अर्थात परमेश्वर के समीप बड़े हियाव के साथ में आना And you है, have to pray in the name of Jesus to your Father और God. आपको अपने स्वर्गीय प्रेमी पिता से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना And you है, have to tell him whatever you want, और आपको फिर उससे कहना है जो भी आपकी आवश्यकता whatever हो, you need, आपकी कुछ भी आवश्यकता क्यों ना in हो, whatever areas where you want help, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, and you will receive the mercy, और आपके ऊपर दया की जाएगी, and you will receive the grace, आप पर अनुग्रह किया you जाएगा, will receive the strength, आप बल को पाएंगे, you will receive the peace, आप शांति को you पाएंगे, will receive the joy, आप आनंद को पाएंगे, you will receive whatever you are in need of, आपको किसी भी बात की आवश्यकता उस समय होगी वो आप पाएंगे, because you're not having confidence in yourself but in Jesus our high priest. क्योंकि आपने अपने ऊपर में भरोसा नहीं रखा है, आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा रखा Upon the है। finished work of our Lord Jesus on the cross of हमारे Calvary. प्रभु यीशु मसीह के उस पूर्ण कर दिए गए कार्य के ऊपर में आपने भरोसा रखा है, जो उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर में एक बार हमेशा के लिए पूरा कर दिया है। See, if you read ahead from chapter 5 verse 5, यदि आप आगे के अध्याय को पढ़ते हैं, उसी इब्रानियों की पत्री में अध्याय 5 वचन 5 में it says, so also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, you are my son, today I have begotten you. और लिखा है वचन 5 में, अध्याय 5 वचन 5 में, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। And ahead it says in verse 6, as he also says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. और फिर वचन 6 में लिखा हुआ है, इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। And verse 10 says, called by God as high priest according to the order of Melchizedek. और वचन 10 के अनुसार फिर यहां लिखा हुआ है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। See, who made Jesus Christ our high priest? किसने प्रभु यीशु मसीह को हमारा महायाजक बनाया? See, God himself appointed Jesus as our high priest forever. परमेश्वर पिता ने ही प्रभु यीशु मसीह को सदा के लिए हमारा महायाजक ठहरा In दिया। the Old Testament, the Lord, the Yahweh, he appointed Levites as his high priest. पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा लेवियों को महायाजक की रीति पर नियुक्त किया करते, But now here in the
in the new covenant, Jesus Christ, the only begotten Son of God, has appointed as our high priest in order of Melchizedek forevermore. परंतु यहाँ पे नए नियम में, नई वाचा में परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर उस बड़े महायाजक के तौर पर हमेशा के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं By God. परमेश्वर के द्वारा। Jesus has not taken this position by himself. यीशु मसीह ने स्वयं इसको नहीं लिया है, God gave him. परमेश्वर ने दिया है, God appointed him परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है so that he can help you and me. ताकि वो आपकी और मेरी मदद कर सके, So that he can open the door for you and me to ताकि- enter into the Holy of Holies every day. ताकि वो आपके और मेरे लिए उस द्वार को खोल सके, महापवित्र स्थान के द्वार को एक बार हमेशा के लिए खोल दे। Amen. Amen. If you read ahead in chapter 7, यदि आप इसी इब्रानियों की पत्री के अध्याय 7 को पढ़ते हैं, and this is how the chapter 7 begins. और यहाँ पे अध्याय 7 इस रीति से शुरू होता है। For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Verse 2, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being translated king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace. वचन अध्याय 7 वचन 1 और 2 में लिखा हुआ, यही मलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। वचन 2, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा And है। let's read verse 3 also. It's beautiful. It says, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of the days nor the end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. और फिर वचन 3 में Amen. बहुत ही अद्भुत बात लिखी है जिसे हम पढ़ेंगे। लिखा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। Hallelujah. Hallelujah. Who is this Melchizedek? कौन है ये मलकीसेदेक? Who met with Abraham. जो अब्राहम से जिसने मुलाकात किया। Hallelujah. Hallelujah. He's known as a king of Salem. वो शालेम का राजा है। Oh, he's a priest of the Most High God. Bible reports about बाइबल him. बताती है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है And the word of God says, he's a king of righteousness. और जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो तो धार्मिकता का राजा है, And he's the king of peace. वो शांति का राजकुमार है। Who is the king of peace? कौन है शांति का राजकुमार? Oh, he's Jehovah Shalom. He's वो Yeshua. यहोवा शलोम है, वो यीशु मसीह है। Who is the king of righteousness? कौन है धार्मिकता का राजा? Jesus. स्वयं प्रभु यीशु And नासरी। he is the Melchizedek वही तो मलकीसेदेक है who met Abraham on those जो days. उन दिनों में अब्राहम से मिला। The word of God is clearly declaring about him. कलाम यहाँ पे उसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताती In है। verse 3, वचन 3 he में has no father, no mother. उसका ना तो पिता है ना माता, There's no genealogy that anybody knows about him. उसकी ना ही कोई वंशावली है कि कोई उसके विषय में जान सके। The word of God is saying about Melchizedek that he has neither beginning of the days nor the end of life. और कलाम में लिखा हुआ है ना उसके दिन का अंत है, दिन की शुरुआत है ना अंत है, But परंतु he's made like the Son of God. वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहर कर, Son of God. परमेश्वर का पुत्र। Who is the Son of God? कौन है परमेश्वर का पुत्र? Jesus Christ, your and my Lord and Savior. आपका और मेरा प्रभु यीशु And नासरी। the word ends, the scripture 3 ends like this. He remains the high priest continually. और यहाँ पे कलाम 3 में अंतिम में लिखा हुआ है, वो सदा के लिए याजक बना रहता है, Forever. हमेशा के He लिए। is the priest. Those, in days when Abraham was coming back after killing some kings. उन दिनों में जब अब्राहम युद्ध को लड़कर आया तब भी वो याजक था, And now also he is our high priest. और अभी भी वो हमारे लिए हमारा महायाजक And है, he will be our high priest forever. और वो हमेशा के लिए हमारा महायाजक बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is what you have to know. यही तो आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है That he is for you. कि वो आपके लिए है, He's with you. आपके साथ हैं। Son of God is our high priest. परमेश्वर का एक लौता बेटा
आपका और मेरा महायाजक है। We have a high priest हमारा एक ऐसा महायाजक है that opens a door for us for heaven to access God anytime. जिसने स्वर्ग में हमारे लिए दरवाजे को खोल रखा है कि हम परमेश्वर पिता के पास में हर समय पहुंच सकते And हैं। as we begin in Hebrews chapter 4, it says he understands our weaknesses. और जैसे हमने कलाम में इब्रानी 4 में पढ़ा कि वो हमारे कमजोरियों को भी समझता He है। understands that sometimes when we feel exhausted and tired of the pressures of life, जब हम थक जाते हैं जीवन के संघर्षों के द्वारा, वो समझता he है। understands when sometimes you bust out in anger. वो समझता है जब आप क्रोधित भी होते He हैं। understands all the emotions that we go through. जिस भी भावनाओं से हम गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे समझते हैं। Because the Bible says that our high priest Jesus Christ is 100% man and 100% God. क्योंकि कलाम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य He हैं। went through all this process. वो हर एक प्रकार की इस प्रक्रिया से भी होके गुजरे He हैं। understands our sorrow and our joy, हमारे आनंद को, हमारे शोक को वो समझते हैं। but yet without sin. परंतु तो भी वो परखा तो गया, तो भी वो निष्पाप निकला। But he is always ready to help us. और वो हमेशा तैयार है हमारी मदद He करने के लिए। always ready to pray for us. हमेशा वो तैयार है हमारी सहायता करने के Bible लिए। says he is our mediator. कलाम के अनुसार वो तो हमारा मध्यस्थी करने वाला है। See, he always put our case in front of God with mercy. वो तो हमारे मुकदमे को हमेशा परमेश्वर के सामने में दया के साथ प्रस्तुत करता And है। God sees us now, you and me, through our high priest Jesus और Christ. इसलिए कलाम के मुताबिक तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर, उस बड़े हमारे महायाजक में होकर हमें देखते हैं। So let us now boldly, इसलिए हियाव के साथ में, with confidence, बड़े आत्मविश्वास के साथ, confidence in Jesus, यीशु मसीह पर विश्वास के साथ, confidence in our high priest, हमारे महायाजक के ऊपर में उस आत्मविश्वास के साथ let us approach to God. पिता, उस परमेश्वर पिता के सामने Let पहुंचे। us approach to the presence of God, the throne of grace. परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के तले हम पहुंचे। And whatever is in your heart, just pour it out there. और जो कुछ भी आपके हृदय में क्यों ना हो, वहां पे आप उसे उंडेल दीजिए And just receive the mercy. और वहां पे उसकी दया को आप स्वीकार Take करिए। his mercy. He is ready to help you. वो तैयार है आपकी मदद करने के लिए। Sometimes we become so self-obsessed. और कई बार हम बहुत ही स्वयं में इतने ज्यादा हम अपने आदी हो जाते We हैं। are sometimes living a self-centered कई life. बार हम अपने स्वयं केंद्रित जीवन को जीते हैं। Or sometimes we are even trying to become self-righteous. कई बार हम स्वयं धार्मिकता भी दिखाते हैं। Sometimes I think when I will have 40 days fast, then only I can approach to the throne of कई grace. बार हम सोचते हैं कि जब हम 40 दिनों का उपवास प्रार्थना करेंगे तब हम परमेश्वर के समक्ष पहुंच I am पाएंगे। not against fasting. मैं उपवास के विरोध में नहीं हूं, I also fast. मैं भी उपवास करती हूं, But I am not fasting to reach to the throne of grace. मैं इसलिए उपवास नहीं करती कि परमेश्वर के उस सिंहासन के समक्ष But पहुंचूं। I can anytime reach to the throne of grace in Jesus, with Jesus. यीशु के द्वारा, यीशु मसीह में मैं हमेशा परमेश्वर के उस सिंहासन के तले पहुंच सकती I हूं। have that boldness in Christ. मेरे पास मसीह यीशु में वो हियाव है That He is my Lord, He is कि- my Savior, He is my High Priest. कि वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा महायाजक है। In Him my sins are forgiven. उसमें ही तो मेरे पापों से मुझे क्षमा मिली And है। in Him I have become a beloved child of the Almighty और God. यीशु मसीह में ही होकर मैं पिता की प्रिय संतान बनी हूँ। See, the children never have any kind of fear to access to their daddy. और बच्चे कभी डरते नहीं माता पिता के समक्ष जाने के Even लिए। sometimes when they know that your dad or your mother is not in a good mood, then also they run to them, then also they trouble them, then also they talk with them, then also they always want to be near to them. बच्चे जब देखते हैं माता पिता क्रोधित हैं, उनका स्वभाव उस समय थोड़ा सा क्रोधित दिखता है, तो भी वो दौड़ के आते हैं अपने माता पिता के समक्ष में और अपनी बातों को रखते हैं। Even when my husband is working, my daughter keeps on knocking the door saying, "Daddy, Daddy, Daddy." She's not at all scared और that how he will react. कई बार जब मैं काम करते रहता हूँ, बेटी आती है, दरवाजे को नॉक करती है, खटखटाती है और बिना इस झिझक के कि पिता डांटेंगे या गुस्सा करेंगे या क्या, वो दरवाजे को खटखटाते रहते हैं। Which my daughter has a full confidence that daddy will surely open the door and he will pour out his love to और her. हमारी बेटी बहुत आत्मविश्वास के साथ दरवाजे को खटखटाती है कि पिता जरूर से दरवाजे को खोलेंगे। And dad used to open. और मैं तो
दरवाजे को खोलता ही हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And whatever may be doing, whatever urgent things he's doing, he always opens the door when कितना she भी knocks. महत्वपूर्ण काम मैं क्यों ना कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजे को खोलता हूँ। This is how we are. इसी रीति से तो हम We हैं, are his children. हम उसकी संतान He हैं। is never busy to listen to us. वो व्यस्त नहीं है कि वो हमारी ना सुने। He will never reject you whenever you will enter into the throne of grace. जब कभी भी आप अनुग्रह के सिंहासन के तले पहुंचेंगे, वो आपको अस्वीकृत नहीं करेगा। God will never tell you, go and come back tomorrow. परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि जा कल फिर आना। He will hug you, he will embrace you, he will supply the help वो that is आपको required. गले लगा देगा, आपको चूमेगा और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी He करेगा। loves you. वो आपसे प्यार करता He's है। your daddy वो God. आपका परमेश्वर पिता है। Hallelujah. हालेलुया। So this is my prayer for each one of you this आज की morning. सुबह मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, That you should have this boldness in your heart. और आपके हृदय में ये आत्मविश्वास आ जाए। By adapting this revelation in your life. आपके हृदय में, आपके जीवन में इस प्रकाशन को आप पा लीजिए। That it is not your self-righteousness, it is the righteousness of Jesus who is the King of righteousness. आपकी स्वधार्मिकता के कारण नहीं, परंतु उस धर्मी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए Because हैं। of his finished work on the cross of Calvary, because of his mighty blood that is shed for your redemption. उसके उस सिद्ध और पूर्ण कर दिए गए कार्य के ऊपर में, कलवरी के क्रूस के ऊपर में लहू को बहा दिए जाने के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए My हैं। high priest is faithful and trustworthy all the time. हर समय मेरा महायाजक विश्वास योग्य और धर्मी है। So let us pray together right now in the name of Jesus. आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना And let करें us approach to the throne of grace boldly. और उस सिंहासन के तले बड़े हियाव के साथ I में want हम to tell जाएं। each one of you, those who are present here, those who are watching us online, let us take this few minutes to just enter into that throne room. जितने भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, बड़े हियाव के साथ में आइए हम विश्वास के साथ में पिता के सिंहासन के तले And चलें। whatever is in your heart, और आपके हृदय में जो कुछ भी क्यों ना हो, whatever you want, whatever areas where you want help or you want the grace of God और to help you. आपके जीवन के किसी भी क्षेत्रों में जहां पे आपको दया अनुग्रह की आवश्यकता होगी, Tell it to the Lord. प्रभु से कहें, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। He will surely supply the help required. वो निश्चय ही लगने वाली आवश्यकताओं को आपके जीवन में पूर्ति करेगा। Someone is there. कोई है ऐसा, Yes, my dear brother, you're saying that, Lord, please, I need your forgiveness. कोई है जो कह रहा है कि हाँ पिता, मुझे तेरी क्षमा की आवश्यकता I है, want to come back to you. मैं तेरे पास में लौट के आना चाहता हूँ। Oh, approach boldly, my dear brother. मेरे प्रिय भाई, प्रभु के समक्ष आप बड़े हियाव के साथ में आ जाइए। Trusting the blood of Jesus. यीशु के लहू के ऊपर में विश्वास करिए। It's more than powerful to cleanse you from all your sins. आपके तमाम प्रकार के पापों को यीशु का लहू धो सकता It's है। cleansing you right now. वो इसी समय आपको साफ कर रहा है। It's cleansing you and making you whiter than snow. वो आपको हिम से भी कहीं ज्यादा श्वेत बना रहा है। It's removing all that filthy rags from your life. आपके जीवन के मैले चिथड़े कपड़ों को वो उतार रहा है Giving you the clothes and robes of righteousness. और वो धार्मिकता के वस्त्र आपको पहना रहा है। Right now, इसी समय इसी समय He's holding your hand and taking you into the throne room of God. वो आपके हाथों को थाम कर आपको परमेश्वर के सिंहासन के तले लेकर जा You रहा are है। going to get a vision of the throne room. I prophesy in Jesus' यीशु name. के नाम से मैं भविष्यवाणी करती कि इसी समय आपको परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन मिल If you've जाए। never seen it before, यदि आज से पहले आपने कभी इसे नहीं देखा है, I'm telling you right now, by the power of the Holy Spirit, मैं- you are going to see open heaven. पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए मैं आपको बता दूं कि आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे। Oh, you will see the throne room of God आप परमेश्वर के उस सिंहासन को देखेंगे every day. हर दिन। Let us have this desire आइए इस इच्छा को हम रखें that, Lord, I want to enter the throne room of God every day. कि मैं हर दिन परमेश्वर के सिंहासन के उस कक्ष में मैं I प्रवेश want to करूं। meet my daddy every day. मैं हर दिन अपने पिता से वहां मुलाकात करूं। Lord, Abba Father, प्रभु परमेश्वर पिता, thank you for your goodness in our धन्यवाद lives. आपकी भलाई के लिए। Thank you for Jesus Christ, our high priest forever. धन्यवाद हमारे महायाजक के लिए जो हमेशा के लिए हमारा महायाजक Thank है। you for loving us beyond measure. धन्यवाद हमारे सोचने विचारों से कहीं बढ़कर आपने हमसे प्रेम Right रखा now, है। you're granting your people the mercy and the favor and the grace and the strength that is required for them in the time of need. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आवश्यकता में लगने वाली वो दया, वो मदद, वो अनुग्रह आप अपने लोगों को दे रहे हैं। Lord, thank you, Lord.
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते that हैं you are providing for them. कि आप इनके लिए पूर्ति कर रहे हैं। Thank you, Lord, you're delivering them. धन्यवाद आप इनको छुटकारा दे रहे You're हैं, healing them. आप इनको चंगा कर रहे हैं, You're pouring out your favor upon them and giving them success. आप इनके ऊपर दया दृष्टि करके आप इनको सफलता दे रहे हैं। Thank you, Lord, धन्यवाद that प्रभु you're holding the hand of your people with your righteous right कि hand आप अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा अपने लोगों के हाथ को आपने थामे हुए and हैं telling them there's no need for you to be fearful. और आप कहते हैं कि अब डरने की आवश्यकता नहीं Let है, not your hearts be troubled anymore. तुम्हारा मन अब और व्याकुल ना हो। Jesus is saying, I am with you. यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, I'm there for you. मैं तुम्हारे लिए हूँ। I will supply all the mercy and grace that is required. हर एक वो दया और अनुग्रह जो तुम्हें आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं करूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद We प्रभु। give you all the glory, honor, and praise of our Father, Son, and Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको इस सारी महिमा देते In हैं। Jesus' matchless name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a mighty move of God the Father is here, खुदावन का अद्भुत सामर्थ्य उपस्थिति यहाँ पर। and such a wonderful revelation from God's और word that we have परमेश्वर के received. वचन के अद्भुत प्रकाशन को हमें पवित्र आत्मा से Dear people पाया। of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की just receive it by faith. विश्वास से इस प्रकाशन को बिल्कुल थाम ले, ग्रहण कर Receive ले। it by faith. विश्वास से ग्रहण करना। The revelation, this is the truth of the word of God. ये परमेश्वर की वचन की सत्यता है। Receive it by faith. उसे आप विश्वास से आपको अपनाना You होगा। know, the scripture says, वचन कहता है Habakkuk chapter 2 verse 4, हबक्कुक की किताब अध्याय 2 वचन 4, that the righteous live by his faith. ओ धर्मी जो है अपने विश्वास से जीवित रहता है। His faith on the finished work of Jesus वो Christ. विश्वास रखना है मसीह के उस संपूर्ण किए गए कार्य पर जो कलवरी के क्रूस पे उसने पूरा किया, Just what has been preached before जो you. आपके सामने आज प्रचार किया So गया। live by faith. विश्वास से जिए, Receive it by faith. विश्वास से अपना ले। No matter what types of situations you are हर एक into. परिस्थिति में अगर आप क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, Sometimes the situation comes to suppress and to kill your faith. कई बार परिस्थितियां आती हैं कि आपके विश्वास को नाश करें। And you feel that, God, where are you? आप सोचते हैं कि परमेश्वर आप कहाँ हैं। I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ God is there just next to you. परमेश्वर बिल्कुल आपके साथ। Jesus said, यीशु ने कहा I will be with you मैं forever. तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। He is you, our Lord. वो हमारा प्रभु है, He is with you. वो आपके साथ। So no need to be afraid. डरे ना। Let's receive the blessing of आइए God. परमेश्वर की आशीषों को भी हम ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करे। And may the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर and चमकाए be gracious to और you. हम पर अनुग्रह करे। May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर पिता अपने मुख हमारी ओर करे and give you his और हमें अपनी peace. शांति और तसल्ली दे। In Jesus' sweet प्रभु यीशु name. मसीह के मीठे नाम से Amen. आमेन। Amen. Stay blessed. See you next week. आश्रित रहिए, आपसे आने वाले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।